شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے سارے مہینوں. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے اور یہ مقابلہ ہے دہن میں زباں تمہارے لیے. آپ نے دیکھا کہ آج کی رات کی مناسبت سے 21ویں شب کی مناسبت سے ممکنہ طاق رات کی مناسبت سے آج محفل سجائی گئی جس میں ہدایہ درود و نعت پیش کیا گیا اور دعا کے ساتھ یہ محفل جو ہے اپنے بام عروج تک گئی ہے. ہم یہ نہیں کہتے اختتام پر گئی ہے بلکہ بام عروج تک یہ محفل گئی ہے الحمدللہ. اور آج کی رات کی برکات سمیٹتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور اب جو ہے وہ مقابلہ ہے اسکولز کالجز اور یونیورسٹیز کے طلباء و طالبات اس میں حصہ لے رہے ہیں ماشاءاللہ. اور 18 راؤنڈ کے بعد پہلا دوسرا اور آج تیسرا کوارٹر فائنل ہے جو جاری و ساری ہے. 4 طالبات ہمارے پاس آج موجود ہیں اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق آج کے موضوع پر تقریر کرنے کے لیے. ان کا عزم دیکھیے گا, ان کا حوصلہ دیکھیے گا, ان کی تیاری دیکھیے گا اور رات گئے اس پہر میں ان کا یہ جذبہ دیکھیے گا کس انداز کا جذبہ ہے. انشاءاللہ یہ ضرور اس بات کا اظہار کریں گی. اور 3 ججز ہمارے ساتھ موجود ہیں, تینوں معزز ججز میں پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب تشریف فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ کے ساتھ محترم جناب شاہد مسرور صاحب تشریف رکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ کے ساتھ رضوان زیدی صاحب تشریف رکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ تینوں کی اجازت سے ہم مقابلے کا آغاز کر رہے ہیں. تیسرا کوارٹر فائنل ہے اور آج 4 کنٹسٹنٹ ہیں ہمارے ساتھ. دیکھتے ہیں کہ کس کی کیسی تیاری ہے. اور آج موضوع ہے تہذیب حاضر. اس موضوع پر تقریر کرنے کے لیے ربیزہ خبیب سے میں گزارش کروں گا تشریف لائیں. ربیزہ خبیب تشریف لائیں اور اپنے دیے گئے وقت میں اپنی تقریر کو مکمل کریں. ربیزہ خبیب. نئی تہذیب تکلف کے سوا کچھ نہیں, چہرہ روشن ہو تو کیا حاجت گلگانہ فروش. صدر علی وقار, میں 2 تہذیبوں کا موازنہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. ایک وہ تہذیب جسے ہم بھول چکے ہیں اور ایک وہ موجودہ تہذیب جس کے پیچھے ہم خود کو بھلا چکے ہیں. جی ہاں جناب محترم, میں اسلامی تہذیب اور مغربی تہذیب کی بات کر رہی ہوں. کیا ہے ہماری اسلامی تہذیب؟ ہماری تہذیب تو نام ہے اعتدال پسندی کا, انصاف کا, رحم دلی کا, مرد کی نیچی نگاہ اور عورت کے پردے میں رہنے کا. پھر آج یہ بے حجابی کیوں, ریاکاری, فحاشی, نمائش حسن کیوں, یہ سود, یہ فیشن پرستی اور یانیت کیوں؟ یہ سب اس لیے کیونکہ آج ہم اسلامی تہذیب کے بجائے مغربی تہذیب کے رنگ میں رنگ چکے ہیں. اور یقین مانیے اس بات کا خدشہ اقبال کو پہلے ہی تھا. اسی لیے آپ فرماتے ہیں نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی, یہ سنائی مگر جھوٹے نگینوں کی رضاکاری ہے. جناب صدر, مغربی تہذیب بنی آدم کے حق میں لعنت سی ہے. یہ وہ زیور ہے جس میں جھوٹے نگوں کی نمائش ہے. یہ آج کی نوجوان نسل کو اس لیے بھاتی ہے کیونکہ آج کی نسل نے قرآن کی تعلیم اور نبی کی سنتوں سے رخ موڑ لیا ہے. اس تہذیب میں جتنی خوبیاں نظر آتی ہیں وہ دراصل خامیاں ہیں. اس میں ہر طرح کی آزادی ہے جو ہمیں ہماری اسلامی تہذیب سے دور کر رہی ہے. اور شاید اسی لیے آج ہمیں صحیح اور غلط میں فرق ہی نہیں نظر آتا. جی ہاں, اگر ہم اس مغربی تہذیب کے سانچے میں مزید ڈھلتے رہے تو یہ ہمیں کھوکھلا کر دے گی. اور یہی وجہ ہے کہ آج غیر اسلامی تہذیب قلب مسلمان پر غالب ہے. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا نہ پائیدار ہوگا. جناب محترم, آج کی تہذیب وہ تہذیب ہے جس میں نیکی فقط دکھاوے کی نیت سے کی جاتی ہے, جہاں عورت مارچ میں میرا جسم میری مرضی جیسے نعرے لگائے جاتے ہیں, جہاں نہ بچوں سے شفقت ہے نہ بزرگوں کی عزت, جہاں تکبر و غرور عام ہے, جہاں مرد کی غیرت مٹ چکی ہے اور عورت کی شرم و حیا معدوم ہو چکی ہے. تو پھر صدر علی وقار, اب ہم میں سے ہر کوئی اپنے گھر کا, اپنے ارد گرد کا جائزہ لے. ہم میں کون سی تہذیب پائی جا رہی ہے, اسلامی یا غیر اسلامی؟ ہماری صبح اور شام, ہمارا اٹھنا بیٹھنا, ہمارا لباس سب غیر اسلامی تہذیب سے تشابہ کرتا ہے. جناب صدر, مجھے افسوس ہوتا ہے جو ملک اسلام کے نام پر بنا اس ملک میں اسلامی تہذیب کا کوئی وجود نہیں. آج بھی یہ ممالک طاغوتی نظام پر چلتے ہیں. بے حیائی, بے پردگی, نسل پرستی عام ہے. ایسے میں جناب اعلیٰ, ہمارا زوال حیرت انگیز تو نہیں؟ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا, اب عام دیدار یار ہوگا. سکوت تھا پردہ دار جس کا, وہ راز اب آشکار ہوگا. گزر گیا وہ دورے ساقی کے چھپ کر پیتے تھے پینے والے, بنے گا سارا جہاں میں خانہ,
हर कोई बादा ख्वार होगा। शुक्रिया। रबीज़ा खुबैब ने तकरीर की और इब्तिदा से लेकर अब तक हमारे जजेस ये कहते आए हैं कि मुकाबले में और मुबाहिसे में फ़र्क होता है। मुकाबले में तकरीर होती है, मुबाहिसे में रद्द कबूल की कैफियत होती हैं, या तो मवाफ़क़त में या मुखालफत में दलाइल पेश किए जाते हैं। इस सूरत हाल को पेश नज़र रखते हुए बहुत सी चीज़ों को पेश नज़र रखना चाहिए, वो जो असातिज़ा या वालिदैन तैयारी करवा रहे हैं। बहरसूरत इसको डिस्कस करेंगे हमारे जो जजेस हजरात हैं। महनूर निहाल से गुजारिश करूँगा, आज के तीसरे क्वार्टर फाइनल की दूसरी शरीक हैं महनूर निहाल। शुरू। इजाजत है? बिस्मिल्लाह। आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं। मैं वे हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। तहजीब के मायने इस्लाह और हिदायत के हैं, यानी दरअसल तहजीब इस्लाह का दूसरा नाम है। तहजीब सोच और नजरिया के ताबे है। जी हाँ, किसी कौम की तहजीब परखने के लिए उसके नजरियात और अकायद लाज़मी इकाई हैं। जनाब आला गर्ज ये कि तहजीब एक ऐसा गहवारा है जिसमें इंसानियत परवान चढ़ती है। जी हाँ, मोरक्को के नज़दीक दुनिया की 5 बड़ी तहजीबों में जिस तहजीब का सिक्का अभी तक जारी है उसमें सबसे पहले इस्लामी तहजीब है। सुभान अल्लाह। एक बात तो रोज़े अव्वल से आया है कि हर चीज़ चमकती हुई सोना नहीं होती। याद रखें, तहजीब हाजिर जो बज़ाहिर तो बहुत दिलकश है लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं, क्योंकि वो ऐसा जेवर है जिसमें छोटे नगीने लगे हुए हैं जो दिखने में तो बहुत ही खूबसूरत है लेकिन दरअसल बेमोल हैं। तहजीब हाजिर ने हम तरक्की की तहजीब हाजिर की तरक्की ने हमारी आंखों को चकाचौंध कर दिया है। सोशल मीडिया, इंटरनेट और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दरअसल तहजीब हाजिर के वो नगीने हैं जो दिखने में तो बहुत खूबसूरत और दिलकश है मगर मगरिबी तहजीब के ताबे हैं। याद रखें, मगरिबी तहजीब मजहब से बेगानगी पर मबनी है जबकि मशरिकी तहजीब में मजहब को एक बुनियादी हैसियत हासिल है। नई तहजीब ने कई रंग है तुझ पे चढ़ाए, मजहब से दूरी के सभी ढंग सिखाए। तहजीब और तमद्दुन जो थे आबा के तुम्हारे, मगरिब की इस तकलीद ने सब तुझको भुलाए। जी हाँ, हमारे आबा और अजदाद ने जो अजीम शान तहजीब और तमद्दुन परवान चढ़ाई है, हम उसके वारिस तो हैं लेकिन हम उसको फरामोश कर बैठे। जी हाँ, हमारे दिल मशरिकी तहजीब और तमद्दुन से खाली और खोखले हो गए हैं। हम अपने अंदाज़े गुफ्तगू से भी नाकाम हो चुके हैं क्योंकि हम मगरिबी तहजीब के सांचे में ढलते जा रहे हैं जो आज़ादी और कामयाबी का नाम लेवा तो है मगर दरअसल नाकामी और कैद है। ऐ नौजवानों, मत भूलो कि हम कलंदराने अंदाज़े फिक्र की हामिल कौम है, क्योंकि मगरिबी तहजीब या जदीदियत की चकाचौंध ने हमारे दिलों को जंगालूद कर डाला है। लेकिन अगर हम हिम्मत करें तो हम फिर से मशरिकी तहजीब पर सोने का रंग चढ़ाकर इसको कीमती और अनमोल बता सकते हैं। आज हम जदीद तहजीब के साए में तरक्की के बजाय बेरारबी का शिकार हो गए हैं। हमारा लिबास, चालो ढाल, अंदाज़े फिक्र सब कुछ मगरिबी तहजीब के सांचे में ढलता जा रहा है। लिहाजा वक्त है कि हम सोचें कि अब बस और नहीं, क्योंकि हम इस्लामी तहजीब तमद्दुन के वारिस हैं, हम एक कलंदर हैं, हम एक शहबाज हैं और हम ये जिम्मेदारी कबूल करते हैं कि हम इस्लामी तहजीब तमद्दुन जो मशरिकी तहजीब का खासा है इसको जदीदियत के साथ परवान चढ़ाएंगे। जिद्दत की चमक इसमें और मगरिब की झलक, कौमों की तरक्की की बन बैठी है सामन, मजहब से भी बेगाना करे और अपने चलन से। नहीं मुझको गवारा ये तहजीब व तमद्दुन, नहीं मुझको गवारा ये तहजीब व तमद्दुन। शुक्रिया। माशाअल्लाह। अच्छा जी, महनूर निहाल ने, ज़ाहिर है ये हैं माशाअल्लाह छोटी छोटी बच्चियां लेकिन बड़ी बड़ी स्पीकर्स हैं माशाअल्लाह। अगली जो है तशरीफ लाएंगी करीना ऐवान से गुजारिश करूंगा आए और आज के दिए गए मौजू पर यानी तहजीब हाजिर पर दिए गए वक्त में तकरीर करें, अपनी जो तैयारी है वो उसका इजहार करें। करीना ऐवान। तहजीबों की यलगार में तहजीब नौ अपने नौकीले पंजे हमारे मुआशरे में गाड़ चुकी है। इस तहजीब का तारुफ कुछ यूं है कि ये अगर जदीद तालीम की सूरत में हो तो इल्हाद की राहें हमवार करती हैं। निज़ाम हुकूमत में मगरबी जमहूरियत की सूरत में इंसानों पर कहर बनती है। सरमायादारियत और मुलूकियत की बुनियादों पर खड़ी होकर ये तहजीब आज़ादी नस्वा का पुरफरेब नारा
लगाए तो मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसे घटिया ख्यालात का प्रचार करती है कि नजर को खीरा करती है चमक तहजीब हाजिर की। ये सनाई मगर झूठे नगों की रेजाकारी है, ये सनाई मगर झूठे नगों की रेजाकारी है। जनाबे वाला, अफसोस कीजिए उन ज़हनी गुलामों पर कि जिन्होंने बज़ाहिर चमकती दमकती नजर आने वाली इस तहजीब हाजिर को यूं तस्लीम किया है कि उन्हें इंसानी हुकूक के जाली अलमबरदारों के हाथों तड़पती सिसकती इंसानियत नजर नहीं आती। उन्हें शाम ता फलस्तीन इन्हीं अमने आलम के ठेकेदारों के हाथों खेली गई आगो खून की होली नजर नहीं आती। मगरिब में खानदानी निजाम की तबाही के नतीजे में इंसानियत की तजलील नजर नहीं आती। इन्हें इसी तहजीब की ओल्ड हाउस कायम करने की घटिया रिवायात नजर नहीं आती। जनाबे वाला, इसी तहजीबी अलगार में अब वक्त आ गया है कि दुनिया को इस तहजीब से रोशनास कराया जाए जो इंसान को इसका असल मकाम दिलाती है। जी हाँ जनाबे वाला, वही तहजीब जो बिलाल हबशी को सरदार बनाती है, उमर बिन खित्ताब को फारूक आजम बनाती है, कि जिनके अदल इंसाफ के जरिए दुनिया तहजीब मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगाही पाती है कि ये तहजीब इंसानों को आपस में भाई भाई बनाती है, सरमायादारियत की दीवार गिराती है, अदल इंसाफ के जरिए दुखी इंसानियत की मसीहाई करती है। जनाबे वाला, इस तहजीब के हामिल ईमान वालों पर यह फर्ज है कि वो इस तहजीब हाजिर के मुकाबले में ईमानी कुव्वत के जरिए तहजीब मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायम करें। है तिंक माया तो जर्रे से बयाबां हो जा, नगमाए मौज से हंगामाए तूफान हो जा, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, करीना ऐवान ने अपनी तकरीर की अपने दिए गए वक्त में। कैसी तैयारी है, आप देख रहे हैं मुकाबला बराबर का है तकरीबन, और बिल्कुल बहुत करीब करीब है। अब देखें कि हमारे जजेस क्या फैसला करते हैं। इनका हतमी फैसला होगा जो फैसला होगा, और आप भी मुनसिफ हैं, आप जो अपने अपने घरों में जहाँ जहाँ बैठे इस तकरीरी मुकाबले को देख रहे हैं, यकीनन आप भी जज कर रहे होंगे। देखिएगा आपकी क्या जजमेंट होती है। मलाइका कुरैशी आज की आखिरी कंटेस्टेंट है, तीसरे क्वार्टर फाइनल की आखिरी शरीक का नाम है मलाइका कुरैशी। इजाजत है। सरज़ी वक़ार, बाग में खिले फूल, मखमली हरियाली, तरतीब से लगे पौधे और दरख्त माली की मोहब्बत, तवज्जो और मेहनत का नतीजा होते हैं, और अगर यही माली बाग की हिफाजत ना करे, लापरवाही बरते, तो यकीनन बाग उजड़ जाएगा। सरज़ी वक़ार, खानदान भी तो बाग ही का इस्तारा है, और बच्चों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फूल से तशबीह दी, क्योंकि माँ नन्हे जहनों में आने वाले ख्यालात को मुस्बत और तामीरी समत में मोड़ने में मसरूफ रहती है। जिस रब ने मर्दो जन की तख्लीक फरमाई, वो दोनों के जज्बातों एहसासात, जिस्मानी कुव्वत और फितरी जरूरियात से बेखबर कैसे रह सकता है। इसलिए उसने औरत को घर की मलका बनाया, मलकियत और विरासत में हिस्सा दिया, और मर्द को कवाम यानी माल खर्च करने वाला बनाया। सरज़ी वक़ार, हमारी तहजीब, हमारी सकाफत और हमारे मजहब में मर्द को सरबराह बनाया गया, क्योंकि सरबराह के बगैर कोई इदारा नहीं चल सकता। लेकिन मगरिब ने कवानीने फितरत से बगावत की तो औरत की इज्जत और असमत को खिलौना बनाया, उसके एहसासात को मजरू किया, उसके हुकूक गस्ब किए, और फिर मसवात मर्दो जन का नारा लगाकर औरत को बाजारे जिन्स बनाया। फिर औरत ने घर के महाज से राह फरार क्या हासिल की कि निकाह का मुकद्दस बंधन तार तार हुआ। बेहयाई और फहाशी के तूफान ने खानदानी इदारे तबाह बर्बाद कर दिए, और फिर वालिदैन के लिए ओल्ड होम वजूद में आए। सरज़ी वक़ार, आजादी निस्वा की आड़ में तश्कील पाने वाला मुआशरा हमारे जवानों की आंखों को खीरा करके उनके औसान पर काबिज होने की कोशिश कर रहा है। हमारे खानदानी इदारे तागूती कुव्वतों के खास अहदाफ हैं,
بے हिजाबी तो शैतान की अव्वलीन चाल थी। बिलाशुबा बाग सींचना मुश्किल अम्र है लेकिन उजाड़ना आसान। ये वही एहसास था जो उम्मत की माओ की गोदों में पलने वाले बच्चे तारिक बिन जियाद, मोहम्मद बिन कासिम, सलाहुद्दीन अय्यूबी और टीपू सुल्तान की सूरत तागूती चालों को कैद रखते। मगलूबियत के बावजूद सदियों बाद भी हमारे खानदान अल्लाह की कायम करदा हुदूद व क़यूद के मुताबिक कायम है, क्योंकि हम आज भी सीरत तैयबा अपनाकर खानदानी इदारे मजबूत रख सकते हैं। नजर को खीरा करती है चमक तहजीब हाजिर की, ये सनाई मगर झूठे नगों की रेजाकारी है, ये सनाई मगर झूठे नगों की रेजाकारी है। शुक्रिया। जी जनाब, मलाइका कुरैशी ने अपने दिए गए वक्त में कोशिश की कि अपने कंटेंट को पूरा किया जाए और तकरीर की। ये आज तीसरा क्वार्टर फाइनल है, चारों ने तकरीर कर ली है, नतीजा मुरतब हो रहा है, बहुत गैर जानिबदार नतीजा और बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ माशाल्लाह यहाँ जजमेंट हो रही है। हम देख रहे हैं कि तमाम जजेस बहुत गौर से बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ सुनते हैं और अपने अपने नताइज मुरतब करते हैं और फिर एक कंपाइल जब होता है ये तो नतीजा आपके सामने पेश किया जाता है। एक वक्फे के बाद लौटेंगे, हमारे साथ रहिएगा। तो जनाब, इस तौर पर तीसरा क्वार्टर फाइनल दहन में जुबां तुम्हारे लिए आज मुकम्मल हुआ। नतीजा नहीं आया अभी, नतीजा महफूज है और जब फैसला महफूज हो जाए तो फिर ज्यादा तशवीश और ज्यादा दिल की धड़कनें तेज हो जाया करती हैं। तो फैसला महफूज है, लेकिन मैं राय लेना चाहूंगा। डॉक्टर साहब क्या कहिएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस बेटा, मैं आप चारों मेरी बच्चियां जो है ना बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह। और बड़ा मुश्किल वक्त था भाई जदी साहब और भाई शाहिद साहब कि कैसे, लेकिन बहरहाल कुछ तलफ़ुज़ात की तरफ आप तवज्जो दीजिए। बार बार मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, यकीन नहीं यकीन है लफ्ज़, जनाब सदर नहीं जनाब सदर। और फिर नस्ल जिस्म ऐसा नहीं होता, नस्ल जिस्म, तो जिस्म है, नस्ल है। और हमारी सुबह व शाम, सुबह शाम, गुफ्तगू हो तो फिर बात सही, उर्दू हो सही। इसके बाद महवे हैरत होना और मेवे हैरत होना, फर्क है दोनों में। और इसी तरीके से जब इतनी तेजी से बोल रही थी आप, मैं किसी की तरफ नहीं देख रहा ताकि पॉइंट आउट कोई ना हो उसमें, इतनी तेजी से बोल रही थी बेटा आप कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई रट के आई हो, बस हम पे उंडेल रही हैं आप। मेहरबानी कीजिए, आराम से बोलिए। खूबसूरत तकरीर थी और है माशाल्लाह। आज़ादी नस्वा और आज़ादी निस्वा, ज़रा सा तलफ़ुज़ात का ख्याल रखिएगा। रूशनास कराना और रोशना करना, बड़ा फ़र्क है दोनों में। रोशनास, आगही बोलने में, जब हम गुफ्तगू में जाते हैं तो आगाही ज़रूर लिखते हैं हम, लेकिन आगही से खूबसूरती आती है। और ऐसे ही मलकियत और मिल्कियत में फ़र्क है। फिर हुदूद क़यूद और हुदूद क़यूद दोनों में फ़र्क है। तो इस चीज़ का तरह सा देख लीजिए। बस मैं अपनी बात को यहीं रोक रहा हूँ क्योंकि अहबाब को। शाहिद भाई क्या कहिएगा? बेटा, बात यह है कि तकरीरें सब ने अपनी उम्र के एतबार से बहुत अच्छी की हैं। ये तरबियत का मरहला है। हम जब आपको कोई बात बताते हैं तो सिर्फ आपके लिए नहीं बताते हैं। तलफ़्फ़ुज़ की बात इसलिए होती है कि आपको हमेशा याद रहे। आपका अंदाज़ बहुत खूबसूरत है बोलने का, बहुत कॉन्फिडेंस है, तकरीर वाला अंदाज़ लेके आइए, वरना आप इतना खूबसूरत बोलती हैं। और ये दोनों छोटियाँ तो क्या बात है इन दोनों की माशाल्लाह। अच्छा, होता क्या है, ये आपके सीखने का मरहला है। एक एक बात को समझा कीजिए। तकरार लफ्ज़ी क्या होती है, जब एक जैसे लाइनें आप बोल रहे होते हैं ना, तो उसको किस तरह निभाया जाता है तकरीर में, लोगों को सुने और समझे इसको। स्ट्रेस कहाँ देना होता है, पॉज कहाँ लेना होता है, सम कैसे करना होता है, ये चीज़ें मुझे आज कम नजर आई हैं। यही चीज़ें सीखना होती हैं, रट कर बोल देना कुछ नहीं। मिसाल के तौर पर, ये दुनिया क्या से क्या हो जाएगी, नहीं, क्या से क्या, कहाँ स्ट्रेस करना है, हो पर नहीं करना है, क्या, क्या से क्या हो जाएगी। इसी तरह से एक शेर यहाँ पर पढ़ा गया, वो एक ज़रबुल मिसल है, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। तो यहाँ कहा गया हर चमकती हुई चीज़, ठीक है ना, हर चमकती। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं। टेक्निकल क्या है, अब इसको सीखें, इसी की ज़रूरत है। बाकी मुझे खुशी बहुत हुई आज, इतने छोटे छोटे बच्चे, क्या बात है भाई। रिजवान भाई, बहुत अच्छा मुकाबला। और खुशाइन बात यह कि हमारी बेटियां जिस शफाफ सोच के साथ आगे बढ़ रही हैं, तो इत्मीनान इस बात है कि मुस्तकबिल महफूज हाथों में, महफूज भी और रोशन भी। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। और रबीज़ा बेटा, इसमें कोई दो राय नहीं कि आपका अंदाज़ सबसे मुख्तलिफ, मुनफरिद और नुमायाँ है। तो अपनी सलाहियत को मज़ीद परवान चढ़ाएँ आप। और रिवायती तकरीर के अंदाज से कदर मुख्तलिफ है। खैर, बहरहाल मुकाबला ये। और महानूर,
بیٹا اللہ آپ کو سلامت رکھے. چہرے کے تاثرات بہت اچھے تھے. باڈی لینگویج پہ تھوڑا کام کریں. سر نے تلفظ کے معاملات تو بتا ہی دیے. قرینہ امان جب اپنی بات کا پنچ لگاتی ہیں بیٹا تو مائک پہ جو آتی ہے نا وہ بڑا اچھا لگتا ہے, لیکن ذرا سا مائک سے ڈسٹینس رکھیں. ملائکہ آپ یقیناً آپ کو ان تینوں پر ایک تھوڑا سا سینئر کا ہونے کا بھی اعزاز ہے, لیکن بہرحال مقابلہ تھا. لیکن آج تقاریر سب کی سن کے بہت ہی سب نے اپنی عمر کا جو ہے ادا کیا. بہت اچھی تقاریر. یہ نہیں ہمیں ظاہر کرنے دیا اور ظاہر ہونے دیا کہ ان کی پہلی تقریر ہے. یہ تقریر کرتی ہیں چاروں اور ماشاءاللہ مقررہ ہیں, چاروں اسپیکرز ہیں. نتیجہ سنا دوں یا کل ول پھر کسی وقت؟ اچھا نہیں, ابھی سنا دیتے ہیں. پہلے ہم اپنے جو اسپانسرز ہیں ان کی جانب آ جائیں. آج آپ چاروں کے ساتھ سیلانی مسالے کی جانب سے گفٹ ہیمپر جائیں گے, کوثر مسالے کی جانب سے گفٹ ہیمپر جائیں گے, فوڈ بستی کی جانب سے گفٹ ہیمپر جائیں گے, معروف سویٹس کی جانب سے گفٹ ہیمپر جائیں گے, اور کوسم لوزنجز کی جانب سے گفٹ ہیمپر جائیں گے. اس کے علاوہ ہمارے جو فائنلسٹ ہیں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کے لیے محترم جناب سہیل شمس صاحب کی جانب سے کیش پرائزز کا الحمدللہ اعلان کیا گیا ہے اور وہ پیش کیے جائیں گے, تو وہ فائنل میں ہوگا. لیکن آج جو ونر ہے اس کا نام ہے, اس طالبہ کا نام بس لے رہا ہوں بس میں نام, اور یہ لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جلدی سے نام لے لیا جائے. ان کا نام ہے ملائکہ قریشی. ملائکہ قریشی نے آج کا تیسرا کوارٹر فائنل ون کر لیا ہے اور سیمی فائنل میں چلی گئی ہیں. سیمی فائنل میں جانا آپ کو بہت مبارک ہو. اس مرحلے سے اگلے مرحلے میں کامیابی بہت مبارک ہو, اور آپ تینوں کو بطور خاص بہت مبارک. بہت اچھے کمنٹس آپ کے لیے. تقریریں بہت قریب تھی, لیکن ظاہر ہے ایک نے کوالیفائی کرنا ہوتا ہے, اور وہ ملائکہ قریشی نے آج کر لیا ہے. آپ تینوں کی تشریف آوری کا صرف ایک جملہ. جی سر. بیٹا آپ کو دل برداشت تھا, بالکل نہیں ہونا ہے. صلاحیتیں بہت ہیں, آگے بڑھتے رہو میرے بچوں. آگے انشاءاللہ تعالی کامیابی آپ کے انشاءاللہ. ان کے لیے ساتھ بہت ساری ہماری دعائیں, ARYQTV کی بہت سی نیک خواہشات, اور یہ گفٹ ہیمپرز ان کے ساتھ جائیں گے. اگلا مقابلہ ہے لب پر نعت پاک کا نغمہ. کل بھی تھا اور آج بھی ہے, اس کا بھی آج تیسرا کوارٹر فائنل ہے. دیکھیں کیسے کیسے کنٹسٹنٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, کتنی خوبصورت آوازوں کے ساتھ. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان.